dear students, welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have last previous lecture we have done and we have solved the exercises which the shooting test. Okay, so once again we will see the page number 10, the dozen roses. Okay, see the dozen roses. We have to see the exercise A and B and C. Okay, we will see tomorrow. We will see today all these three exercise. Okay, see first one, understanding better. Write the true for T. मतलब T लिखना है and F for false रहेगा तो you have to put F. मतलब अगर true रहेगा तो you have to tick also. If the answer is false तो you have to put the cross. आया समझ में? अगर आंसर ट्रू है तो आपको टिक करना है राइट, और अगर आंसर गलत है फॉल्स है तो यू हैव टू क्रॉस. अंडरस्टूड? सी द पोएट रिसीव 10 रोजेस एज अ गिफ्ट वन डे. पोएट ने 10 रोजेस गिफ्ट के तौर पर लिए थे क्या? नहीं. ऑलरेडी अब टॉपिक इज डजन रोजेस मीन्स 12, तो उसका क्या है फर्स्ट का? इट्स अ फॉल्स. तो फॉल्स के लिए हमने क्या बोला था आपको? क्रॉस करना है. ओके, सी द पोएट गेव वन ऑफ हर रोजेस टू हर फ्रेंड्स बिकॉज इट वाज हिज बर्थडे. पोएट ने जो रोजेस है वो अपने फ्रेंड को दिया था. क्यों दिया था? क्योंकि उसका बर्थडे था क्या? नहीं. सो सेकंड आंसर इज ऑल्सो false. So on the behalf of false we have to cross. We put cross. Next, the poet gave one roses to her sister because she loved very much. Obviously the poet one roses who had given to his sister for little flower cheer, and she loved his sister. So it is a right. So right के लिए हम क्या करते हैं? मतलब proof के लिए we have to sign it's a right. Then 4, the poet gave one roses to his friend who was not very close or a friend for a long time. Obviously it is a yes. Yes है तो it is a true. True के लिए right है. सी उसका जो एक फ्रेंड रहता है किसका? द पोएट का, वो उसको भी एक मतलब क्या फ्लावर देती है, एक रोज देती है, जबकि वो उसका जो फ्रेंड है वो लॉन्ग फ्रेंड रहता है ना, मतलब बहुत ही मतलब who was not very close to the poet but still she had given to her a rose. Understood? The poet kept only one single bird. Bird मतलब एक कली, flower है ना. The bird is not blowing properly. The bird मतलब एक कली जैसे बोलते हैं. तो बोला है कि पोएट के पास बस एक ही बचा था क्या? तो yes, it is a true. तो the poet kept was only one bird. Those who are tall and beautiful. Okay, see B. So we have to complete our first A exercise. So we will see the exercise B. Complete the following sentence. यहाँ पे see in these questions in exam will ask you have to complete the following sentence. वहाँ पे एक sentence दिया रहेगा who do not the completed. You have to complete the suitable words, suitable sentence. Okay, वहाँ पे दिया है the poet gave one roses to her sister to bring her. The poet ने एक जो फ्लावर है वो अपने बहन को दिया था क्योंकि what is the reason behind why the poet give the flower to her sister? क्यों दिया था? क्योंकि a little फ्लोअर चीयर मतलब उसके खुशी के लिए, उसको उत्साह लाने के लिए द पोएट हैज गिवन द फ्लावर टू हर सिस्टर. आया समझ में? तो फर्स्ट का क्या है? अ लिटिल फ्लोअर
cheer. A little floral cheer. Okay. आया समझ में? Then a friend was helped more by the flower or visit of the poet. वो क्या है उसका? Cannot tell. वो नहीं बता सकता. क्यों? उसने flower दिया है. It's a cannot. Cannot का हम can't भी लिख सकते हैं और cannot भी लिख सकते हैं. It's a short form. Cannot tell. मतलब उसने नहीं बताया tell. Second, a singer, bird, poet kept was. वो जो flower था वो कैसा था? It's a, I told you, it's a beautiful and सुंदर और क्या था? अच्छा था, लंबा था, टॉल था. आए समझ में? उसके बाद the friend had given the roses to one other day. It's the poet. Understood? So इसी प्रकार से we have to complete all the questions one by one. Okay, you just concentrate on the blackboard. I will revise once again the answers. Okay, see, look at the blackboard. See, first का क्या है? The poet gave one roses to her sister to bring her a little floral cheer. Okay, see, don't confuse, it is a A actually. Okay, FLORAL is a floor cheer, उत्साह के लिए, है ना. उसके बाद the friend was helped more by the flower on the visit of the poet. वो cannot tell. मतलब कैसा है कि फ्रेंड को हेल्प भी करना है, उसको फ्लावर भी देना है, बट उसको बताना नहीं है. The single bird the poet kept was a beautiful and tall. सुंदर और लंबा. The friend had given the roses to the poet. आंसर क्या है? The poet the other day. मतलब फ्रेंड ने रोजेस दिया था किसको? पोएट को, है ना. लास्ट स्टांजा में वो ऑलरेडी मेंशन है. सी, उसके बाद देखो, रीड एंड फाइंड, पेज नंबर 11. रीड एंड फाइंड आउट द वर्ड्स दैट्स राइम विद द फॉलोइंग इन द पोयम. है ना, वहां पे क्या दिया है आपको? पोयम है, वही से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है. ऑलरेडी वहां पे दिया है डे, डियर, वेल, लॉन्ग एंड टॉल दिया है. सो वी हैव टू फाइंड ऑन द पोएम. हमको पोएम में से क्या लिखना है? सॉरी, वी हैव टू फाइंड इन द पोएम द राइमिंग वर्ड्स. अब देखो वहां पे राइमिंग वर्ड्स क्या दिया है? डे. ऑलरेडी वहां पे क्या दिया है? फर्स्ट का डे. डे का क्या आएगा? इट्स अ अवे. इट्स अ राइमिंग वर्ड. ओके, अवे मतलब दूर, डे मतलब दिन, सबको पता है. देन उसके बाद क्या है? डियर. डियर लिख लेते हैं. वेल, लॉन्ग, थर्ड का वेल, फोर्थ है लॉन्ग और फिफ्थ वन क्या है? इट्स अ कॉल. ओके, सो डे का ऑलरेडी वी हैव राइट, oh sorry, डे का ऑलरेडी वी हैव रोट. ओके, सो देन डियर का इट्स अ cheer. डियर का क्या है? इट्स अ cheer. ओके, थर्ड वेल का इट्स अ टेल. बोलते हैं ना कि पोएट कैनॉट टेल, सो वो हमको मिल गया है. सो वेल का टेल, इट्स ए लॉन्ग, इट्स अ ऑन. देन ऑल, टॉल. टॉल कहाँ पे था? The poet has kept only one word, those who have
ब्यूटीफुल एंड टॉल। तो टॉल हमको वहां से वो वर्ड्स मिलते हैं, समझ में आ गया। सो इसी प्रकार से वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स बट करेक्टली। सी द नेक्स्ट थिंग कैन आंसर, हाउ डिड द पोएट फील्स आफ्टर गेटिंग द गिविंग अवे ऑल द रोजेस। पोएट को क्या महसूस हो रहा था जब वो सारे फ्लावर्स उसने सभी को दिए, मतलब फ्रेंड्स को और सिस्टर्स को दिए। You have to write the answer with correct. Which words will you choose to describe the action poet? वहाँ पे दिए हैं हस्टी, जनरस एंड शो ऑफ। इन तीनों में से you have to choose the right one and आपको लिखना है, आंसर है जनरस, है मतलब जेन्युइनली नहीं, वो सच में देता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे देना चाहिए। He didn't do show off, शो ऑफ के लिए देता, हास्टी हाश के लिए भी नहीं। तो आपको पोएट के लिए एक वर्ड डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स अ बी जनरस। आए समझ में। सो इसी प्रकार से हमको वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट फोकस द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर दे विल आस्क, बिकॉज आवर आंसर इज फुली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इफ यू विल नॉट केयरफुली read the answers, you will not solve the answers. Okay, so आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही बराबर पढ़ना है। अगर वहाँ पे पूछा है कि complete the following sentence, don't confuse to write true or false and fill in the blanks. Okay, so you have to, when you will solve your paper, you have to just focus what is the questions. Understood? So tomorrow we will see the others exercises. So till then you have to do study, keep study. Okay, so see you soon. We will see tomorrow. Take care. Bye bye.